Hello all. This is my new video about the new chapter of macroeconomics, that is theory of income and employment, AD and AS. The theory of income and employment is introduced by John Maynard Keynes, popularly known as Keynesian theory. He was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of the government. Now, what is actually is this economic theory, this economic policies, this employment ADNS is that whatever we have studied in our previous class, that is in microeconomics, we have studied about individual units. But individual units, for example, individual demand, individual supply. But here in this chapter, we are going to study about total concepts, that is aggregate concepts. So what is this aggregate concepts? It refers to the total demand for final goods and services in an economy during a year. As it's the macro concept of the economics, so it will deals with the total production. So what are the basic components? What are the basic things which will have to count as total? So these are the basic components. As you can see here, these are the basic components. The main components of AD in an economy, open economy, is private or household consumption expenditure, that is C. Whatever consumption expenditure households, that is consumers, are doing, it will be referred as C in the economy. And private, in second component, is private investment expenditures, that is whatever investment expenditures firms will be adding to the economy, or will be expending to the economy, expensing to the economy, will be termed as investment, that is I. And the third one is government expenditures. As we know that in a socialist economy, government plays a vital role in the process of development. So while in the process of development, government spends a huge amount of money, which referred as G, which will be referred as government expenditures, and in macro it will be referred as G. And the last one, as earlier I have mentioned here, that it is an open economy. So we will be taking both imports and exports. That is foreign exchange, or means outside trade will also be included. So the last one is net exports. That is X minus M. So what is X minus M? X means exports and M means imports. Whatever exports we are doing, as you know that when we are exporting anything, in return we are getting foreign exchanges, and when we are importing something, we'll have to spend foreign exchanges. So net exports will be X minus M. So our AD, thus the AD can be calculated as C plus G plus I plus X minus M. This is the basic formula to calculate the AD in macroeconomics. Here you can see that AD means aggregate demand. Earlier we have seen in microeconomics that demand, when we are talking about demand, we are talking about only individual demand, that is individual consumers demand, individual firms supply, we were talking about in micro. But here the concept is now broadened up. We are talking about the demand, whatever demand the entire economy is placing, the entire economy is creating, is known as AD. So in order to make it more understandable, I am ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड, कुल डिमांड. इसका मतलब क्या है कि हमने पिछले अपने माइक्रो में हमने पढ़ा है, या फर्दर आप मेरा वीडियोस अगर देखें तो आपको दिखेगा कि माइक्रो में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड्स के बारे में पढ़ा था, यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल सप्लायर्स, यानी इंडिविजुअल डिमांड है मार्केट में और इंडिविजुअल सप्लाई है मार्केट में. तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ
सिर्फ कंजम्पशन और यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तक बात को सीमित नहीं रखा। यहाँ हमने हर उस डिमांड को एक साथ कैलकुलेट किया है, एक साथ लिया है, जो कि एक दिए गए इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है। अगर कोई फर्म्स रॉ मटेरियल्स खरीदता है तो वो भी एक प्रकार का डिमांड हुआ। अगर कोई गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या कुछ और पर्पस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करते, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का डिमांड हुआ। उसी प्रकार जब हम एक्स एंड एम यानी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का भी एक ही लॉजिक होता है। एक्सपोर्ट्स हम लोग करते क्यों हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर हमारे कमोडिटी का बाहर से डिमांड आता है तो हम लोग उस चीज को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से अगर हमें किसी कमोडिटी का डिमांड है, हमारे देश में किसी कमोडिटी का डिमांड है, तो हम उसे इंपोर्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये जो वो चीजें हैं जो हमें पूरे इकोनॉमी में देखने को मिलती है, ओपन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, जहाँ पे हम विदेश के साथ भी व्यापार करते हैं, विदेश के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा ट्रांजैक्शंस होता है, हमारा लेन देन होता है। तो अब हम अपने दूसरे स्लाइड में आते हैं, जिसे हम जहां हमने सी को समझाने के लिए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में सी होता क्या है। तो व्हाट इज सी एक्चुअली? प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसा हमने अभी बताया कि हमने माइक्रो में पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड, तो यहाँ पे भी हमारा जो माइक्रो का इंडिविजुअल डिमांड है वो यहाँ का सी है। आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। इट कंप्राइजेस अ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स वॉट एवर डिमांड्स हाउस होल्ड्स आर क्रिएटिंग in an economy is known as C. It may be durable goods, it may be semi-durable goods, non-durable goods, anything can be. Consumption of households depends upon their disposable income and MPC. So their disposable income, what do we understand by disposable income? Disposable income, we can refer income here with the with the alphabet Y. हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चलेगा कि इनकम को हम रेफर करते हैं वाई से। और एक नया चीज आप यहाँ पे देखिएगा, एमपीसी। व्हाट इज एमपीसी? एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? आपने अगर डिमांड का डेफिनेशन पढ़ा है या डिमांड के बारे में जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि विलिंगनेस टू परचेज, एबल एंड विलिंगनेस टू परचेज, ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये वही है। दिस इज दैट ओनली व्हेन अ कंज्यूमर is able and willing to purchase a commodity at the given price. Marginal propensity to consume is that. हमारे खरीदने की इच्छा, willingness to purchase. This is known as marginal propensity to consume. ये marginal propensity to consume को हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे. We will solve few numericals related to MPCs also. Now, the next one is I. What is I? Investment. It refers to the expenditure incurred by firms or purchase of capital like machines, plants, equipments, etc. to increase the production capacity. आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हाउसेज या कोई भी फर्म्स अगर मशीनरीज में, रॉ मटेरियल्स में खर्च करते हैं तो उसे वो एज अ कैपिटल गुड्स या इस तरह से उसको मानते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे मानते हैं। जब रॉ मटेरियल्स पे खर्च करते हैं तो वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना लगाता है, पैसा अगर खर्च करता है, तो उसके पीछे एक ही मतलब होता है, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट और इन ऑर्डर टू सोल्ड द पर्टिकुलर प्रोड्यूस इन द मार्केट। सो हियर वी कैन सी दैट, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर फर्म द्वारा इनकर्ड होता है, चाहे वो मशीनरी खरीदे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करे या कुछ भी हो, इसको हम लोग इकोनॉमी में आई से उसको मेजर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज। रिलेटिव वैल्यूज क्या है? एमईआई मतलब पहले समझ लीजिए, एमईआई जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई सा भी फर्म अगर इन्वेस्ट करता है तो उसके पीछे एक ही लॉजिक होता है, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे हो गया MEI मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर, दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट।
Economists call the expected rate of return in on an addition to capital investment as the marginal efficiency of investment. तो यहाँ MEI मतलब होता है आपका जो मैंने आपको सरल भाषा में बताई कि मैं अगर पैसा लगा रही हूँ कहीं पे भी, मैंने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरे इन्वेस्ट करने का एक ही लॉजिक है, आई वांट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और आई वांट ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो यही वो लॉजिक है इकोनॉमिक्स में, उसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं या प्रॉफिट अमाउंट कहते हैं, उसको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट के से मेजर किया जाता है। तो इसमें दो चीज आते हैं, रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करता है हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल यू हैव कंज्यूम, कितना कैपिटल आपने लिया हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न आपका डिपेंड करता है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट किए हैं, उसके ऊपर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका प्रोडक्ट्स का डिमांड कैसा है, उसके ऊपर आपका रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है। तो आई को हमने यहाँ पे दो चीजों से मेजर किया है, रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने आज दो चीज को देखा, सी और आई। अब हम दूसरे स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्लाइड है हमारा जी, दैट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट इज इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी और इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, गवर्नमेंट हैज अ ग्रेट रोल इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का रोल होता है वेलफेयर में। तो क्या वेलफेयर गवर्नमेंट को करना होता है? सी यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, रोड एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? ह्यूज अमाउंट ऑफ परचेज करती है। जो सी इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हमारे एरिया में अगर रोड सही नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सरकार खाली पैसा लेते रहती है, काम वगैरह कुछ नहीं करती। तो और अगर कोई पब्लिक हॉस्पिटल और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हम लोग सबसे पहले जाकर के हल्ला करते हैं, अरे सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं होता। सो दिस इज द थिंग, सरकार को ये सारी चीज को मेंटेन करना होता है। तो जब ये सरकार ये सारी चीज को मेंटेन करती है तो उसके लिए उसको कुछ खर्च करना होता है, और जब वो किसी चीज पे खर्च कर जब हम किसी चीज का मेंटेनेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेंटेनेंस करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स या कुछ दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह गवर्नमेंट को भी जब मेंटेनेंस के काम के लिए यूज करना होता है तो गवर्नमेंट को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब सरकार उन्हीं चीजों को परचेज करती है या जब सरकार उन चीज को परचेज करने के लिए मार्केट में डिमांड रखती है, उसे ही हम जी से मेजर करते हैं। इकोनॉमी में वो जी से मेजर होता है। इन द इकोनॉमी वी मेजर इट विथ जी। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट्स हमारा क्या होता है? हाँ, it is the difference between exports and imports. I have already said you in the beginning. जब हम जब एक डोमेस्टिक नेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बिजनेस करता है, आप लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हमने पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम आउटसाइड द नेशन, ये सारा चीज हमने पढ़ा था, जो हम जिसको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हम लोग डिडक्ट करते थे या कभी कभी हम लोग ऐड करते थे, जो भी है वट एवर इट इज। नेट फैक्टर इनकम कभी कभी नेगेटिव में आता था तो डिडक्ट होता था, कभी पॉजिटिव में आता था तो ऐड। मोस्टली द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी एड इट, लेकिन अगर नेगेटिव में मींस फिगर नेगेटिव में रहता था तो हमें उसको डिडक्ट करना होता था। तो ये NFIA, तो ये NFIA आता कहाँ था? ये ये NFIA आता कहाँ से था? फ्रॉम वेयर डज NFIA कम्स? NFIA कम्स फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। The logic behind NFIA is net exports and that is net exports, means exports minus imports. तो ये हमारा जो net exports है वो डिपेंड्स करता है बहुत सी चीजों के ऊपर। हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपैरेटिव प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी, these are so many things on which this net exports depends. But here what we need to understand is that when we are going to calculate the AD इन एनी इकोनॉमी, जब हमको एडी कैलकुलेट करना है तो हमारा एडी के लिए सिंपल फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडी। अब हम एडी शेड्यूल और कर्व की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे बनता है एडी शेड्यूल और कर्व। आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ देखिए, नेशनल इनकम,
मैंने आपको पहले ही बताया कि अब हम लोग आगे जब भी इनकम के बारे में बात करेंगे तब हम लोग वाई से उसको रेफर करेंगे। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास इनकम लेवल ये है, यू कैन से इट 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब हमारे पास सी क्या है, 20, 25, 30, 35, 40, 45। एंड हमारे पास आई क्या है, आई क्योंकि हमने एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, हम हर बार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते नहीं रहते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट। तो क्योंकि हमारा, हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि हमारा जो ये वाला चीज है आई का ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो हमारा जो मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारा जो आई होता है वो फिक्स्ड होता है, कभी 20 इट इज फिक्स्ड। नाउ you can see one important thing in this particular schedule is that you can see that when the y is 0, at that time also our consumption is 20. So how come it is possible? As you can see that we are also investing 20. So this is the thing, when we are having zero income, that time also we are consuming something, that means that 20 is our investment. क्योंकि ये तो आपके पास इनकम है नहीं, अगर आप खर्च करोगे तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार के पास भी अगर आप जाओगे तो दुकानदार आपको उधार पे ही सामान देगा। तो वो सामान आपका, वो जो मनी आपका है वो आपको आई के तौर पे ही माना जाएगा, क्योंकि वो पैसा आप जब तक नहीं चुकाओगे तब तक तो आपको अगला बार आप सामान ला नहीं पाओगे मार्केट से। तो दैट इज वाई in zero level of income C is equal to 20 and your I is also is equal to 20। तो AD का फॉर्मूला हमने टू सेक्टर इकोनॉमी को यहाँ पे लिया हुआ है। टू सेक्टर इकोनॉमी हमने पहले भी देखा है, जब हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर शुरू किया था नेशनल इनकम से पहले, बेसिक एग्रीगेट जो हमने शुरू किया था, तो उसमें हमने देखा था कि टू सेक्टर इकोनॉमी में दो जन आते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, यानी यहाँ पे भी हमने वही चीज को अप्लाई किया है, कंज्यूमर मीन्स सी, प्रोड्यूसर मीन्स आई। तो हमारा ये जो 20, ये जो हमारा 20 है, जिसको जोड़ने के बाद हमारा हो गया 40। अब आप थोड़ा ग्राफ पे ध्यान दें, दिस इज द प्लेस ऑफ 20। आप इस चीज को देख सकते हैं, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर इस 20 को हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। दिस 20 इज नोन एज बार सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन। हियर यू कैन सी दैट बार सी एंड बार आई। तो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज बार सी। ये जो 20 का ये जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज बार सी और आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं बार सी प्लस बी वाई प्लस आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिमांड फंक्शन विच वी विल बी गोइंग टू स्टडी आफ्टरवर्ड्स। तो अभी हमको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि हमारे पास जीरो लेवल ऑफ इनकम है फिर भी हम खर्च कर रहे हैं 20 रुपए, तो ये हमारा हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीरो लेवल की इनकम होने के बावजूद भी वी हैव टू परचेज। तो ये सारा जो कमोडिटीज है, लाइक योर बेसिक नीड्स भी हो सकते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, एनीथिंग, नॉट शेल्टर एक्चुअली, फूड एंड क्लोथिंग, दिस आर द बेसिक नीड्स। तो अगर आपको, आपके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी आपको खर्च करने होते हैं, तो लाइकवाइज जब हम लोग इकोनॉमी में भी देखते हैं तो कुछ ऐसे बेसिक कंजम्पशंस होते हैं जो हमें जीरो लेवल पर भी करना पड़ता है। आप सुनते होंगे, ये हम लोग आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आप सुनते होंगे कि सरकार पे इतने रुपए का कर्ज है, सरकार पे इतने पिछले सरकार पे इतने रुपए का कर्ज का बोझ था। तो ये सारा चीज कहाँ से अराइज होता है? ये सारा चीज अराइजिंग, ऑल दिस थिंग्स आर अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये बारसी के कारण ये सारा चीज अराइज होता है। ओके, नाउ as you can see in this graph, from here it goes on increasing 20, 25, 30, 35, like this it goes on. This is your income level. So here you are having 0, at 0 level you are having 20, this is your 20, and from in then 20, then 10, then 20, then 30, likewise as it is increasing your this one is also increasing. So your consumption function is equal to C is equal to bar C plus by. Now this is the point AD, sorry, this is the point of sorry, bar A, this is the point of bar A. So as goes on, it is goes on increasing. Here you can see bar A plus by, this bar A plus by, it is means MPC, this by is equal to MPC. Okay,
So in spite of you are not having the income, but then also you'll have to purchase the commodity. So this bar C, bar A plus a BY is known as your MPC, जो हमने आपको पहले बताया, अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया कि where there is C there will be MPC. तो अब हम जब AD को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है C plus I. तो C हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या हो गया, बार C प्लस BY और उसके साथ प्लस बार आई या ओनली आई. तो हम उसको अगर C प्लस आई कर दे तो हमारा टोटल AD आ जाता है. तो लाइकवाइज आपका ये जो AD कर्व है वो यहाँ से आपका शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका शुरू हो गया. ये गोज ऑन इंक्रीजिंग है, 40 45 50 55 लाइकवाइज इट इज इंक्रीजिंग. तो हमने यहाँ से एक मिनिमल जगह से ये वाला 20 और ये वाला 20 से हमने इस चीज को नापा है. दिस हैज बीन आई हैव मेड means the graph has been showed as this is the midpoint. So here y is also 20 and I is also 20, as because in long term y is equal to I. जब हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि particularly इस point से हमने MPC या AD को क्यों डिनोट किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में y is equal to I हो जाता है और s is equal to y हो जाता है. तो y जो है हमारा वो सॉरी I जो है हमारा वो तभी पॉसिबल है जब s होगा. s मतलब होता है सेविंग्स. अगर आपके पास सेविंग्स होगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो. एज सिंपल एज दैट. तो हमारा जो ये जो 20 है दिस इज द मैक्सिमम and you can also see this is 20. Now after this point your income starts increasing, your consumption is also increasing but your income is also increasing side by side. So here you can see that till this part this is 20 30 plus 20 it has become 50. तो ये जो हमारा एग्रीगेट शेड्यूल है ये इसी कर्व को डिनोट करता है. सो टुडे आई विल कीप इट टिल दिस पार्ट ओनली. आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि एडी के बारे में पहले जानना जरूरी है, उसके बाद हम एस की तरफ बढ़ेंगे. होप इट विल मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर इजीली. Please go through the video twice, thrice if you face any difficulty, and please do share, like and subscribe.